guardians, staff member, and my dear students. We are all here present today on this very special occasion of Annual Day 2022-23. We are at Bhagwati Public School, Jaladi, are proud to celebrate this day for yet another year. It is celebration of our dear students and their achievements in the year going by. We are indeed grateful that you have taken out time from your busy schedule to be with us on this annual day. We are pleased to announce you all that we have started commerce stream in this year 2021. So now we have science, arts and commerce stream. So after 10th class, students have the option to choose any one of the stream. Today, we have the children from the junior section and senior secondary section in science, arts and commerce who are here to celebrate annual day in form of showcasing their talents and ability to perform confidently on the stage. The children have made great preparations along with their untiring effort with their teachers and are ready to display in front of you. My report on the school would be incomplete if I did not mention of our wonderful team of teachers who work with dedications and put in their all-out efforts for the welfare of the students. We have a total of 30 qualified and experienced teachers who always and unhesitatingly give their best. Sometimes I feel that I make too many demands on my teachers, but they have always responded very positively. Dear parents, we are aware of the great trust you have reposed on us, and it will be our constant endeavor to live up to your expectations on us. Thank you very much for all understanding and support we have been receiving from you all at the school. Today, we are proud to share with you that our children have proven excellence in their academic subjects and also in the various non-academic fields like sports, arts, information technology and dance too. Their persistent effort to continually keep doing well have shown unmatched result. We provide them the opportunity to grow as gurus and always inspires them to keep learning technique. We will begin the day with a performance by most of the children from our junior and senior secondary section. The children work really very hard throughout the year, juggling through their classes and art room, dance room, playground and library. Children are like the soft lump of mud. Mold them the way you want to make them by inculcating right habits, mannerism and the right attitude towards the work. Parents, we understand you know that what is best for you. Nowadays, both parents go out and work, so we do not miss an opportunity to remind you how important it is to spend quality time with your little ones. And along with that, a daily basis consistent effort to know what is going on inside the head of your child is very important. So form a relationship with them and gives them confidence to confide every single feeling and are not afraid to ask from you even the most complex and simple questions about life. It is after all your child who is asking, however embarrassing it may seem to you, but learn to answer them in the most subtle. We all need some help to bring these little wonderful things, and the best is to do it right. Ask for help where in confusion and then do your best. Besides excelling,
at academic and their projects. It gives us immense satisfaction that our students have also been very active in the field of co-curricular activities. इसी क्रम को जारी रखते हुए खेलों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तर पर स्कूल का नाम रोशन किया है और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मेडल जीतकर खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शॉट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 50 मीटर, 100 मीटर, 1500 मीटर, 4x100 रिले, डेक्लामेशन, लोक नृत्य में हमारे स्कूल के होनहार छात्रों ने 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक तथा 5 कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 14 में 8वीं के आरव ने डेक्लामेशन में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल करके स्कूल का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई। खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे स्कूल के छात्रों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। कला एवं संस्कृति भवन हमीरपुर में आयोजित राजभाषा हिंदी पखवाड़ा में भाषण प्रतियोगिता में 9वीं कक्षा की आस्था ठाकुर ने द्वितीय स्थान तथा 8वीं के आरव ने तृतीय स्थान हासिल किया। वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 8वीं कक्षा की वंशिका शर्मा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। डीडीएम साई कॉलेज कल्लर में आयोजित 12वीं कक्षा की मैथिली ने डेक्लामेशन में तृतीय स्थान, कोलाज मेकिंग में द्वितीय स्थान हासिल करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बहुत बहुत बधाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में आयोजित अंडर 19 जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बैडमिंटन में 10वीं कक्षा की सान्या कटोच और ईशा ने रनर अप की ट्रॉफी हासिल की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदरौर में आयोजित जिला स्तरीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बैडमिंटन में अंडर 19 से 10वीं की सान्या कटोच और 11वीं की ईशा और नंदनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत बहुत बधाई। जिसमें सान्या और ईशा का चयन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बैडमिंटन में अंडर 19 के लिए हुआ। इसमें भी हमीरपुर जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सान्या कटोच का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ और ये बहुत गर्व का विषय है। बहुत बहुत बधाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 11वीं कक्षा के अनीश ने डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। 12वीं के आकाश ठाकुर ने लॉन्ग जंप में द्वितीय स्थान और 100 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान हासिल किया। आकाश ठाकुर का चयन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए हुआ, जिसमें आकाश ठाकुर ने अंडर 19 में लॉन्ग जंप में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हमीरपुर जिला का नाम चमकाया और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान बनाया। बहुत बहुत बधाई। सिल्वर जोन नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, कंप्यूटर ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, जनरल नॉलेज ओलंपियाड व सोशल साइंस ओलंपियाड प्रतियोगिता और एसओएफ में मैथमेटिक्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, साइबर ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड व सोशल साइंस में भी छात्रों ने भाग लेकर प्रमाण पत्र हासिल किए। हिमकॉस्टे शिमला द्वारा आयोजित खंड स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता, जो कि हाल ही में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कांगू में आयोजित हुई थी, उसमें साइंस प्रश्नोत्तरी में 10वीं कक्षा की सान्या कटोच और आकृति शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया। सान्या कटोच और आकृति शर्मा का चयन जिला स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में साइंस प्रतियोगिता के लिए, साइंस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए हुआ, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिटमी टिक्कर में हुई, जिसमें सान्या कटोच और आकृति शर्मा का चयन राज्य स्तरीय साइंस प्रतियोगिता के लिए हुआ, जो कि अभी फिलहाल 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आईआईटी मंडी में आयोजित की गई, जिसमें सान्या कटोच और आकृति ने
जिला हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर ग्रामीण साइंस प्रश्नोत्तरी में राज्य भर में तृतीय स्थान हासिल किया और हमारे स्कूल भगवती पब्लिक स्कूल जलाड़ी का जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर नाम चमकाया। बहुत बहुत बधाई इन बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को और साथ में इनके अध्यापकों को जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। भारत सरकार द्वारा इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के लिए 8वीं कक्षा के अर्नब शर्मा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया तथा उसको 10,000 की छात्रवृत्ति भारत सरकार मंत्रालय द्वारा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक केंद्र नदौन की ओर से भी बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर जो भी स्वास्थ्य सुविधा है वो दी गई, जिसमें डीपीटी टेटनस के टीके भी लगाए गए। वहीं बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों को अल्बेंडाजोल कृमि नामक दवाई और विक्स की गोलियां भी खिलाई गई। वीकली आयरन फॉलिक एसिड की स्वास्थ्य केंद्र नदौन के द्वारा बच्चों के हीमोग्लोबिन की भी जांच की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदौन की ओर से टीकाकरण अभियान के तहत 12 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण भी किया गया। हमारे स्कूल के छात्रों को पंजाबी भाषा भी पढ़ाई जा रही है तथा कक्षा 6ठी से 8वीं के छात्र ड्राइंग और पंजाबी तथा कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्र पंजाबी और संस्कृत विषय में से कोई एक ऐच्छिक विषय जो है वो अपना चुन सकते हैं। स्कूल में समय समय पर बाहरी शिक्षण संस्थानों द्वारा कैरियर संबंधी तथा शिक्षा संबंधी शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। जल संरक्षण पर केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण पर भी SJVNL की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कि बच्चों ने पेंटिंग के द्वारा ऊर्जा बचत के उपायों से अवगत करवाया। साथ ही फिट इंडिया क्विज के तहत स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्होंने फिटनेस और खेल प्रतियोगिता पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दिए। आज़ादी के 75 में अमृत महोत्सव के तहत डाक विभाग द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता भी करवाई गई। सत्र 2022 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में स्कूल के 3 छात्रों ने अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति छात्र 12,000 छात्रवृत्ति व स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति छात्र 10,000 की छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की। 4 सदनों में रमन, अंबेडकर, टैगोर और सुभाष सदन में मेहंदी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें रमन सदन से नेहा और शिखा ने प्रथम स्थान, टैगोर सदन से शिवानी और कृतिका ने दूसरा स्थान, सुभाष सदन से सान्या और शैलजा ने तीसरा स्थान हासिल किया। स्कूल छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक भ्रमणों का भी आयोजन करता है और इस सत्र का कनिष्ठ वर्ग के छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए धार्मिक एवं मनोरंजक स्थल, जिसमें बच्चों ने रामधाम, मुरली मनोहर जोशी मंदिर, आदि शिवधाम और राजा संसार चंद जी के द्वारा बनाए गए किले का भ्रमण किया। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों ने दर्शनीय स्थलों व इतिहास से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। स्कूल प्रबंधन बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में हमेशा से प्रयासरत रहा है और स्कूल में विस्तृत क्षेत्रों के इच्छुक बच्चे भी दाखिला ले सकें और उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए स्कूल ने इस शैक्षणिक वर्ष में बसों के रूट को भी बढ़ाया है। गांव के तंग रास्तों से गुजरकर बच्चों को उनके घरों के समीप से बिठाने के लिए स्कूल ने छोटी बस की सुविधा छात्रों के लिए भी उपलब्ध करवाई है। स्कूल के बच्चों ने सत्र 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही बेहतर परिणाम दिए हैं। 10वीं और 12वीं का स्कूल का परीक्षा परिणाम सराहनीय रहा। 10वीं कक्षा के कुल उपस्थित हुए छात्रों में 75% छात्रों ने 75% से ज़्यादा अंक अर्जित किए। 12वीं कक्षा का में कुल उपस्थित हुए छात्रों में 53%, 53% छात्रों ने 75% से 91% तक अंक अर्जित किए।
हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा सत्र 2021-22 के 22 मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेरिट सर्टिफिकेट वितरित किए गए, जिसमें कक्षा 10वीं से 14 छात्रों, जिनमें खुशी, पलक, एकता, ईशा, नंदिनी, तनिक्षा, आदर्श, आदित्य, अक्षय, अक्षित, ईशान, कार्तिक, प्रिंस, प्रियांशु को मेरिट सर्टिफिकेट वितरित किए गए। कक्षा 12वीं से 8 छात्रों पल्लवी, प्रिया, श्रेया, अभिषेक, अखिल, अविरल, मुस्कान और वंशिका को मेरिट सर्टिफिकेट वितरित किए गए। 10वीं कक्षा में 2021-22 में प्रथम स्थान हमारे स्कूल की पलक शर्मा 96.14% के साथ फर्स्ट, द्वितीय स्थान खुशी ठाकुर 94.7% और तृतीय स्थान एकता कुमारी 91% के साथ हासिल किया। इसी तरह 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 2021-22 में प्रथम स्थान पल्लवी शर्मा 91%, द्वितीय स्थान प्रिया शर्मा 87%, तृतीय स्थान अविरल कौंडल 83.6% के साथ बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। छात्रों की यह कामयाबी हमारे स्कूल के अध्यापकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हम आगे भी इसी तरह बेहतर परिणाम के लिए प्रयासरत रहेंगे। So on this annual day, let us all pledge to give our children not just love, but let us be there for their support, whom they can fall back on when in trouble. Let them know that we are always there for them and they have no reason to be depressed or we tackling their problem alone. Let us nurture these tender words carefully and see them bloom into a responsible, successful citizen who can build a strong nation. My thanks to the entire team of sports staff for their behind the scene work to keep the school tidy and presentable. At the end, I would like to thank you for all for bearing with me for so long, and I now invite you to enjoy the beautiful cultural program of our dear children have prepared for you. Jai Hind. Thank you very much. शर्मा जी जो कि लूम के हैं, उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों से खुश होकर स्कूल के लिए 200 रुपीज़ बच्चों के लिए गिफ्ट किए। सो इनके लिए ज़ोरदार तालियां। अभी मैं मंच के संचालन के लिए हमारे स्कूल की मैथिली और आस्था को बुलाना चाहूँगी। सो इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां और इनका हौसला बढ़ाइए। प्राइज़ Whether it comes to us as sorrow or as joy, it opens a new place in our hearts. Well, it opens a new place in our hearts. Today, we have lot of surprises for the beautiful audience present here. A very good and warm morning to Honorable Chief Guest, Honorable Chairman Sir, respected Principal Ma'am, dignified teachers, all readers, invitees, parents and my dear friends. I am Maithili Singh here. Good morning everyone, my name is Astha and I am from 9th class. Welcome to all of you present here. Now it's time for some entertainment. We need just one commitment from you that you will cheer up with a big round of applause. Now we start the performance with a beautiful शायरी। कागज की कश्ती थी पानी का किनारा था, कागज की कश्ती थी पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। कहाँ आगे हमें समझदारी के दलदल में, कहाँ आगे हमें समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। अब आपके सामने पहली कक्षा के छात्र एवं छात्राएं गलती से मिस्टेक गाने पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इन प्यारे बच्चों का स्वागत।